write a prism. Question you write a prism is made of glass. A prism is made of glass of unknown refractive index. Of unknown refractive index. Full stop. A parallel beam of light is incident. A parallel beam of light is incident on the face of a prism. On the face of this prism. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. Full stop. By rotating the prism, comma, the minimum angle of deviation, by rotating the prism, comma, the minimum angle of deviation is measured to be 40 degree. The minimum angle of deviation is measured to be 40 degree. Full stop. What is the refractive index of the prism? What is the refractive index of the prism? Question mark. Next you write, इसी में same question. If the prism is placed in water, bracket में refractive index Ri equals to 1.33. If the prism is placed in water, bracket में Ri equals to 1.33, comma, predict the new minimum angle of deviation. Predict the new minimum angle of deviation of a parallel beam of light. New minimum angle of deviation of parallel beam of light. Full stop. Refractive angle of prism equals to 60 degree. Refractive angle of prism equals to 60 degree. And given में write sin 50 equals to 0.7660 and sin 35 equals to 0.576. Sin 35 equals to 0.576. Okay, solve this question. Read the question. A prism is made of glass of unknown refractive index. Glass of unknown. Okay. Mu G नहीं पता. ठीक है. A parallel beam of light is incident on the face of this prism. Okay. Prism के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है. By rotating the prism, the minimum angle of deviation is measured to be 40 degree. Minimum angle of deviation was measured to be 40 degree. ठीक है. What is the refractive index of the prism? हाँ वही पूछ रहा है. Refractive index of glass या तो prism. हाँ आगे. If the prism is placed in water, of refractive index equals to 1. अभी प्रिज्म को अगर वाटर में रखें, ठीक है ना, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.33. ओके. Predict the new minimum angle of deviation तो of a इस जगह का डेविएशन निकालना है. हाँ refractive रीड. angle equals to 60 degree. Pardon? Angle of prism is 60. Refractive angle of prism is how much? 60 degree. 60 degree. You are unable to read the question you have written. Sin 50 equals to 0.7660. 0.7660. Okay. Sin 35 degree equals to 0.576. Okay. A is given to you. पहले तो नॉर्मल था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पहले तो एयर में है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A plus dm by 2 by sin A by 2. That is the formula of refractive index. Air में है तो mu g by mu a. तो that is mu g तो नहीं पता, mu a तो 1 होता है, तो mu g is equals to sin 60 plus 40 by 2 by sin 60 by 2. So this is sin 50 by sin 30. Sin 50 कितना है? 0.7660 and sin 30 1 by 2 होता है जो कि 0.5. This is coming how much? 1.532 मिल गया. दूसरे केस में हमें निकालना है, बट अभी वाटर में है, तो क्या लिखेंगे? mu g by mu w is equals to same formula sin a plus dm dash by 2 by sin a by 2. तो mu g तो पता चल गया है 1.532 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना है 1.33.
इज इक्वल्स टू साइन a प्लस dm बाई टू dm डैश बाई टू रहने दो, इस जगह में तो अलग डेविएशन होगा, बाई साइन 60 बाई टू कितना होता है साइन 30, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.532 बाई 1.33 इंटू साइन 30 कितना होता है 1 बाई टू इज इक्वल्स टू साइन a प्लस dm डैश बाई टू। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, यही कुछ 0.575 मतलब 576 के आसपास, तो दैट इज हाउ मच साइन a प्लस dm डैश बाई टू। सो इसके जगह में साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 0. क्योंकि साइन कितना होता है 0.575 35 डिग्री, तो 35 डिग्री विल बी हाउ मच, ये अंदर वाला a प्लस dm डैश बाई टू, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 70 डिग्री, a को इधर लाएंगे तो माइनस a इज इक्वल्स टू dm डैश, a कितना था 60, तो 10 डिग्री इज dm डैश, so the minimum angle of deviation in water is how much 10 degree, easy था, understood, clear, solve it. Next question, all of you write, at what angle should a ray of light, at what angle should a ray of light be incident, at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism, on the face of a prism of refracting angle 60 degree, of refracting angle 60 degree, so that it just suffers total internal reflection on the other face, so that it just suffers total internal reflection on the other face, written total internal reflection on the other face. The question mark, the refractive index of prism is 1.524, the refractive index of prism is 1.524. okay, solve this question. बताओ, At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism? आई पूछ रहा है मतलब, ठीक है, should be incident on the face of a prism, ठीक, Of a refracting angle 60 degree. ये पूछ रहा है आई निकालो, रिफ्रैक्टिव एंगल कितना दिया 60, ठीक, कि नॉर्मल है एनीवन, हाँ, So that it just suffers total internal refraction on the other face. ओके, तो यहाँ से निकला ऐसे गया, तो दिस इज व्हाट R1, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल और बनेगा, ये क्या है R2, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर फेस करना है R2 को क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी द क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल होने से ही तो यहाँ से पास करेगा, और उससे अगर 0.01 डिग्री भी ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो हम लोग को तो बेस लाइन लेके चलना है ना, क्रिटिकल एंगल लेके चलना है, उससे अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमेशा क्रिटिकल एंगल जानना जरूरी होता है, तो R2 शुड बी व्हाट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल होने से क्या होता है गेजेस ऑफ, और उससे ज्यादा होने से रिफ्लेक्ट बैक, तो उसको बेसिस लेके मैं चलता हूँ, ठीक है, और क्या दिया फिर, The refractive index of the prism is 1.52. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है 1.524, ठीक, और कुछ इतना है। सबसे पहली बात प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, सबको पता है साइन क्रिटिकल एंगल इज 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 बाय म्यू होता है कि नहीं, ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे, साइन IC इज व्हाट 1 बाय म्यू, कीप योर कैलकुलेटर्स ऑन ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, तो sin IC is equals to 1 by 1.524, कितना आ रहा है 1 by 1.524, बताओ जल्दी, 1 divided by 0.656, तो sin इनवर्स 0.656 कितना होता है, sin इनवर्स 0.656, please say the value, how much 40 डिग्री 40.99 डिग्री, ठीक है,
सो इतना है क्रिटिकल एंगल अपना। तो पता चल गया यही चीज क्या होता है अपना R2। उसके बाद ये दोनों जब आके इधर मीट करते हैं, यू ऑल ऑफ यू नो, इसको मैं ले लेता हूँ P, इसको Q, इसको R, इसको T। PQRT क्या होता है? इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री प्लस PQR, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। फोन बंद कर दो, जो भी खोल लो। फिर QRT, QRT कितना होगा नहीं पता, प्लस RTP वापस कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 360। तो QRT 180 से 60 जाने से कितना बचेगा? 120 डिग्री। ये 180 चला गया, फिर 60 माइनस होगा तो 120 डिग्री। कितना QRT मिल रहा है। एक और चीज भी पता है, R1 प्लस R2 प्लस QRT प्लस QRT कितना होता है? 180 डिग्री, है कि नहीं? क्योंकि दिस इज अ ट्राइंगल। तो R1 प्लस R2 कितना आएगा? 180 माइनस 120 कितना? 60। अगर लेक्चर्स याद होगा तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A ही होता है, ये ध्यान में रख लो। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। देखो ये 60 था ना, 60 आया कि नहीं? ठीक। अगर R1 अपने को चाहिए तो R1 इज हाउ मच? 60 डिग्री माइनस R2, दैट इज 60 डिग्री माइनस R2 कितना है? 40.99। कितना आ रहा है जरा देख लो, 19.01 डिग्री। ठीक, दैट इज R1। उसके बाद हम लोग स्नेल्स लॉ के पास चले जाते हैं। स्नेल्स लॉ इज व्हाट? sin I by sin R1 is equals to mu। तो sin I तो नहीं पता, sin R1 मतलब sin 19.01 डिग्री is equals to mu दिया है 1.524। तो sin I is equals to 1.524 into sin 19। sin 19 degree is how much? 0.325. 0.325 into 1.524, how much? 0.496। तो I कर लो sin इनवर्स 0.496, पता चल रहा है 0.30 डिग्री के आसपास कुछ होगा। 29 5 से कम है तो 29.74 डिग्री। समझ गए? क्योंकि 0.5 के पास है पर उससे थोड़ा कम, मतलब 30 डिग्री से थोड़ा सा कम। 29.74। दिस इज I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में? सॉल्व। Next question you write, a prism produces a minimum deviation. A prism produces a minimum deviation of 52 degree. A prism produces a minimum deviation of 52 degree for a certain angle of incidence. For a certain angle of incidence. Full stop. The same prism produces a deviation of 63 degree. The same prism produces a deviation of 63 degree for two angles of incidence. For two angles of incidence, 40 degree and 83 degree. For two angles of incidence, 40 degree and 83 degree. Full stop. Find the refracting angle of the prism. Find the refracting angle of the prism, comma, angle of incidence, comma, angle of incidence at minimum deviation, angle of incidence at minimum deviation, and the refractive index of the material of the prism, and the refractive index of the material of the prism. Okay, solve this. Read the question. A prism produces a minimum. Loud. A prism produces a minimum deviation of 52 degree. Minimum deviation 52 degree For a certain angle of incidence. for a certain angle of incidence. ठीक है, normal बना दो. This is I. The same prism produces a deviation of 63 degree. The same prism produces a deviation of 63 degree. ठीक है. For two angles of incidence, 40 degree and 83 degree.
for two angle of incidence 40 degree and 83. अच्छा, फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब 40 डिग्री के लिए भी, अच्छा 40 डिग्री और दूसरा 83 degree. 83, दोनों के लिए डेविएशन वो प्रोड्यूस कर रहा है 63 ओनली, ठीक है। हाँ, सेम प्रिज्म, ओके। Find the refracting angle of the prism, ए निकालना है, ठीक है। angle of incidence at minimum deviation. एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिनिमम डेविएशन मतलब ये वाला है, ठीक है। And the refractive index of the material of the prism. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इमोशनल भावुक हो गई क्वेश्चन, ठीक, ये भी निकालना है। और कुछ? अच्छा, तो कुछ सोचते हैं क्या रिलेशन लिंक हो सकता है, देखते हैं। एक इंसिडेंस के लिए ये आ रहा है डेविएशन, तो रिलेशन क्या होता है डेविएशन के लिए? सबको पता है कि I1 is equals to A plus dm dash by 2, ठीक है। अब दोनों के लिए सेम ही है, वही चीज शॉकिंग। The same prism produces a deviation of 63 degree for two angles of incidence 40 degree and 83 degree. Find the refracting angle of the prism. Okay. See, it has given that this angle of minimum deviation is for I1 as well as I2. तो मैंने I1 equals to A plus dm dash by 2 किया, तो 2I dash equals to A plus dm dash. Similarly, I2 equals to A plus dm dash by 2, तो 2I2 is equals to A plus dm dash. तो मैं इसको 1 और इसको 2 ले लिया, तो what I do, what if I do equation 1 plus equation 2, this will become what, 2I1 plus 2I2, तो A plus A कितना हो जाएगा, 2A plus 2 dm dash, 2A को उधर ले जाओ, ठीक है ना, या तो हमें तो A चाहिए, dm dash को उधर ले जाओ, तो 2I1 plus 2I2 minus 2 dm dash is equals to 2A, 2 हर जगह कट जाएगा, तो I1 plus I2 minus dm dash is equals to क्या है, 8, तो I1 कितना है 40 डिग्री plus 83 डिग्री minus 63 डिग्री is equals to A, तो A कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 60 डिग्री, अंडरस्टूड, दिस इज योर A, ठीक। यहाँ पे एक ही चीज सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे, बिकॉज बुक्स में क्या करता है ना, डायरेक्टली दे दिया है कि फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस A is equals to I1 plus I2 minus dm, ये फॉर्मूला मैंने कभी सुना नहीं था, ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस वी कंसीडर A equals to I1 plus I2 minus dm, तो लॉजिकल करने से आ रहा है, डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद A आ गया, पहला हम लोग का सॉल्व हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इधर आएंगे तो वापस I विल बी व्हाट, A plus dm by 2, तो I तो नहीं पता, A जरूर पता है 60, dm पता है 52 by 2, तो 60 plus 52 by 2 is how much, 112 by 2, कितना हो रहा है 56 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 56। अभी क्या पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, बस म्यू इज साइन आई तो यहाँ का पता है 56, साइन आर क्या हो जाता है a by 2, a कितना है 60 by 2, साइन आई बाय साइन आर होता है ना, a क्या होता है a plus dm by 2, a plus dm by 2 तो डायरेक्टली निकला हुआ है 56, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन 56 बाय साइन 30, निकाल लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1.56, ऑब्वियसली बड़ा है तो 1. sin 56 नहीं तो 2 into sin 56 ही कर दो, sin 30 is 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 into sin 56, हाउ मच दिस इज कमिंग, करके बताओ जल्दी, क्या सोच रहे हो, 658 1.658, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास, comma accurately till 3 decimal places, calculate dispersive power of glass, comma accurately up to 3 decimal places, right?
refractive index of glass for red color, refractive index of glass for red color 1.60, refractive index of glass for red color 1.60. Next, refractive index of glass for yellow color 1.61, refractive index of glass for yellow color 1.61. थर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वायलेट कलर इक्वल्स टू 1.62. ठीक है, सॉल्व. रीड द क्वेश्चन. Calculate dispersive power of glass accurately. मतलब W पूछा है, दैट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास. Accurately up to 3 decimal places. ठीक है. Refractive index of glass for red is 1.60. फॉर रेड 1.60. Yellow equals to 1.61. ओके, Violet equals to 1.62. ठीक है. विगियर में VIBGYOR एंड टू एंड में वायलेट और रेड आता है और ग्लास में व्हाइट लाइट जाता तो पूरा बैंड को लेते हैं. फॉर्मूला इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड बाय Yellow रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो minus. -1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर. क्योंकि येलो बीच में आता है, तुम सोच रहे हो कि ग्रीन बीच में आता है बट येलो आता है क्योंकि वेवलेंथ जब देखेंगे ना एग्जैक्टली इसका मतलब जो वेवलेंथ रेंज में किसका ज्यादा वेवलेंथ होता है, रेड का 7000 4000 और ये बीचों बीच आता है 5500 के आसपास. तो इसलिए येलो को कंसीडर करते हैं. वायलेट माइनस रेड बाय येलो -1 कर लो. कितना आ रहा है 1.62 minus 1.60 by 1.61 minus 1. So 0.02 by 0.61. How much it is coming? 0.03. 0.02. तो यही है. ठीक है. Next question. The refractive indices of crown glass. The refractive indices of crown glass for red and violet colors are 1.515, 1.515 and 1.523 and 1.523 respectively. Full stop. Find the dispersive power of crown glass between these colors. Find the dispersive power of crown glass between these colors. Okay. Next, bit 2. If a crown glass produces a mean deviation of 40 degree, if a crown glass produces a mean deviation of 40 degree, comma, what will be the angular dispersion? What will be the angular dispersion? Okay, solve these two. Read the question. The refractive indices of crown glass for red and violet colors are Red के लिए कितना? 1.515, 1.515, violet 1.523. okay. Find the dispersive power of crown glass between these colors. डिस्पर्सिव पावर चाहिए हम लोग को. ये फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड बाय येलो -1. यहाँ पे येलो का दिया नहीं है बट येलो इन दोनों के बीच में ही होता है ना. अगर नहीं दिया है निकाल सकते हैं. कैसे? एवरेज ऑफ रेड एंड वायलेट कर दो, वही मीन होगा. तो 1.515 प्लस 1.523 by 2 कितना आ रहा है? 1.519. So do this. 1.523 minus 1.515 by 1.519 minus 1. How much this is coming? 0.154. क्या 0.000? अच्छा, ये आ गया. दूसरा बिट क्या था? If a crown glass produces a mean deviation of 40 degree, मीन डेविएशन. मीन मतलब किसका? येलो का. मीन डेविएशन ऑफ येलो
डिग्री में दिया है, रेडियन में नहीं, ये सब रेडियन में होता है। डेविएशन ऑफ येलो इज 40 डिग्री, ठीक है। What will be the angular dispersion? एंगुलर डिस्पर्शन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन पूछ रहा है। एंगुलर डिस्पर्शन को भी इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है लाइक दिस ओनली, W इज इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, बाय डेविएशन ऑफ येलो। यहाँ कुछ -1 नहीं होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट डेविएशन, डेविएशन हैज टू बी लाइक दिस, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड बाय डेविएशन ऑफ येलो, ठीक। बट हमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है ना। तो हमें टोटल रेंज निकालना है। वायलेट कहाँ से, देखो अगर मैं दिखाता हूँ, ऐसा है प्रिज्म, गया ऐसे रे, वायलेट इधर आ रहा है, रेड इधर आ रहा है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई नीड राइट नाउ। तो ये कैसे पता चलेगा, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, यही तो है। दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। वो कैसे निकलेगा, यहाँ से दिख रहा है, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड इज नथिंग बट W इनटू डेविएशन ऑफ येलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लो, W कितना है 0. इनटू डेविएशन ऑफ येलो कितना है 40 डिग्री। समझ में, सॉल्व दिस, जितना है वही है तुम्हारा डिस्पर्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स ऑन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है।